Alright, so let's get started with group 18, right? अब बच्चा अगर मैं बात करूँ group 18 की, right? So अभी तक up until now, we have first discussed the general outer electronic configuration of all the elements. तब मैं p block के across एक trend की बात करूँ, if I talk about the general trend in electronic configuration that we saw across p block, तो let me write down the groups, right? इसमें group 13 से 18 आते हैं, so 13, 14, 15, 16, 17 and 18. If we talk about the outer electronic configuration of group 13, it was ns2 and p1. If we talk about group 14, it was ns2 and p2. If we talk about group 15, it was ns2 and p3, right? यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा था. ग्रुप 16 की बात करूँ, ग्रुप 16 के केस में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ns2 and p4. ग्रुप 17 के केस में इट वाज ns2 and p5. एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 18, इट वाज ns2 and p6. कितना था? ns2 and p6. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी. अब ns2 and p6 मतलब जो ns एस सबशेल और ये भी पी सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं. ns में 2 इलेक्ट्रॉन और np में 6, 1 2 3 4 5 6, which clearly gives us an indication that group 18 elements have a fully filled electronic configuration. That fully filled valence shell configuration, right? जो इनका valence shell होता है वो fully filled होता है, ठीक है, which gives them extra stability. I hope this is clear to everybody, ठीक है. Now let's discuss the members of group 18, ठीक है. तो group 18 का जो general outer electronic configuration it was ns2 and p6. exception आ जाता है इसमें हीलियम का, right? हीलियम में we are all aware, हीलियम का जो electronic configuration it is 1s2. हीलियम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाते हैं, राइट? सो स्ट्रिक्टली विच इज़ वाई देयर वाज अ लाइन ऑल्सो इन एनसीईआरटी which said that if we go by the electronic configuration, there was a line which clearly stated, and here is the line for you guys, this is the exact line from NCERT which says कि strictly as per electronic configuration helium is a s block element. अगर हम electronic configuration के हिसाब से देखें तो हीलियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है. हाँ, ये जस्टिफाइड वेव पर हीलियम में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में जा रहा है. द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू एस सबशेल. लेकिन जो इसकी पोजीशन है वेयर इज इट प्लेस्ड, इट्स प्लेस्ड इन ग्रुप 18 अलॉन्ग विद अदर नोबल गैसेस. लेकिन एनसीईआरटी फिर खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोलता है कि हाँ, भले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से देखें तो हाँ, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, इट शुड हैव बीन एन एस ब्लॉक एलिमेंट. बट लेकिन इसकी जो पोजीशन है ग्रुप 18 में विद इन द पी ब्लॉक वो जस्टिफाइड है. इसकी जो पोजीशन है ग्रुप 18 में पी ब्लॉक के अंदर वो जस्टिफाइड है. क्यों? बिकॉज इट हैज़ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से मतलब है इसका फुली फिल्ड आउटर शेल जो होता है वो फुली फिल्ड होता है, राइट? 1s2 जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट? तो इट हैज़ द आउटर शेल, द वैलेंस शेल इज कंप्लीट, राइट? एंड इट शोज रिजेम्बलेंस एंड प्रॉपर्टीज टू अदर नोबल गैसेज. और ये बाकी नोबल गैसेज से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाती है, राइट? एंड जब हम ग्रुप्स भी डिसाइड कर रहे थे तो वी जस्ट स्टडी all the elements, all the members of a particular group, they show resemblance and properties. अब because ये noble gases से इतनी ज़्यादा resemblance दिखा रही है तो जिसकी position है group 18 में within the p block, that's absolutely justified. I hope this is crystal clear to everybody, ठीक है? Okay, discussing further, now let's introduce ourselves to the members. ठीक है, we have helium, He stands for helium, then neon, then argon, then krypton, then xenon, then radon, then organoson, right? Once again, we have helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and organoson. These are the members of group 18, right? What about the electronic configuration? Sorry, atomic numbers. How do you reduce the atomic numbers? ठीक है, atomic numbers की बात करो, relatively simple. Again, if you want, we can go by the trick. Just a moment, okay? So if you want to, let's say, check out the electronic configuration, it's relatively easy. Let me just open up. Let me just take a blank pen. Okay, 1 second. There we go. Okay, for example, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि I told you about the magic numbers, right? The concept of magic numbers, which was 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32, right? So मतलब 2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो पीरियड होता है इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं. सेकेंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं इसमें दे हैव 8 एलिमेंट्स ईच. The fourth and the fifth period have 18 elements each, and the sixth and the seventh period have 32 elements each, right? तो ये magic numbers वहाँ से आते हैं. With magic numbers की मदद से if you know the atomic number of the first member of the group, you will be able to deduce the atomic numbers of all the other members. It's relatively very easy, ठीक है? तो हम सबको पता है हाइड्रोजन, then comes helium. So helium का basically electronic configuration कितना हो जाएगा? 2. इसका सो हाइड्रोजन देन कम्स हीलियम, राइट? सो हीलियम का बेसिकली जो अटोमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा? 2. हीलियम का अटोमिक नंबर होगा 2. अब देखो, अगर आपको नेक्स्ट पीरियड में मूव करना है, नेक्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स है, राइट? सो अगर 2 में आप 8 ऐड करोगे यू विल गेट 10. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है? फिर नियॉन से आर्गन. तो बेसिकली जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट्स है.
तो अगेन 10 में 8 ऐड करो, यू विल गेट 18। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। फिर थर्ड पीरियड से हम जब फोर्थ पीरियड में जा रहे हैं, राइट, तो फोर्थ पीरियड में अगेन 18 एलिमेंट्स है, तो 18 में अगर 18 ऐड करेंगे विल गेट 36, ठीक है। फिर 36 में दोबारा 18 ऐड करो, 36 में दोबारा 18 ऐड करो, व्हाट डू यू गेट? 36 में अगर हमने 18 ऐड किया वी गेट 54, क्या मिला? 54, ठीक है। तो रेनॉल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 54। 54 में अब आप नेक्स्ट ऐड करो 32, ठीक है। 32 ऐड किया तो कितना आया? 4 2 6 5 3 8, 86। रेडॉन का एटॉमिक नंबर आ गया 86, ठीक है। 86 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 118। ऑर्गेनोसॉन का एटॉमिक नंबर 118, एंड दैट्स हाउ यू डिड्यूस द एटॉमिक नंबर्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी। इट्स वेरी वेरी सिंपल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो जैसे हीलियम का 2 है, तो हीलियम 2 में 8 ऐड करो, यू गेट 10, ठीक है। फिर 10 में 8 ऐड करो 18, फिर 18 में 18 ऐड करो 36, 36 में 18 ऐड करो, यू गेट 54, 54 में 32 ऐड करो, यू गेट 86, 86 में 32 ऐड करो, यू गेट 118, एंड दैट्स हाउ यू डिड्यूस ऑल द एटॉमिक नंबर्स। उसके बाद जनरल डिस्कशन में एनसीईआरटी बोलती है द आउटरमोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, एंड ऑल दीज आर गैसेज एंड दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। अब देखो पहली चीज़, बिकॉज ये सारे इनका आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, राइट। इनका जो आउटर शेल है, चाहे वो हीलियम ले लो चाहे नियॉन ले लो, हीलियम में फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, विच इज़ एस सब शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फर्स्ट शेल फुली फिल्ड है, ठीक है। इनफैक्ट जितनी भी नोबल गैसेज हैं इनमें जो आउटमोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड होता है, और इसीलिए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेज। नोबल पीपल दे हैव एवरीथिंग इन प्लेस, ठीक है, उनके पास सब कुछ भरपूर होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट, राइट, कि दीज आर नोबल गैसेज बिकॉज उनका आउटरमोस्ट शेल है दैट्स कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ कि सारी की सारी गैसेज होती है, इनमें से कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दे ऑल एग्जिस्ट एज गैसेज ओनली, एंड दे केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं ना। व्हेन आई से केमिकली अनरिएक्टिव, दैट काइंड ऑफ गिव्स यू एन इंप्रेशन कि वो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बट you will realize as science progressed, and as science progressed further, and as we dive deeper into understanding different elements and compounds, we did come across noble gases forming compounds with other elements, right? तो ऐसा भी नहीं है कि completely unreactive होते हैं, बट हाँ मेजॉरिटी रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल ऐसे रूम टेम्परेचर पे ऐसे देखोगे आप नॉर्मली वो आप जैसे कंपाउंड्स नहीं कर बनाएंगे, राइट। यूजुअली क्या होता है ना, एट लाइक स्पेशल कंडीशंस में, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर एट अ सर्टेन प्रेशर, ओनली देन विल दे रिएक्ट एंड फॉर्म सर्टेन कंपाउंड्स। ऐसा भी नहीं कि सबके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड में कुछ 1-2 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट करके इन्हें थोड़े बहुत कंपाउंड्स बनाए हैं, ठीक है। सो एज दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, बिकॉज ये बहुत थोड़े कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, बिकॉज नॉन रिएक्टिव है, राइट। तो इसलिए द टर्म्ड एज नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसनोबर है, इन्हें नोबल गैसेज तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनका आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, एंड बिकॉज ये बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, दे आर रेफर्ड एज इनर्ट गैसेज। जैसे कि जो सोडियम है, सॉरी जो हमारा नाइट्रोजन है, दैट इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस, राइट। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट, तो उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिकम्स वेरी वेरी हाई। कितनी हो जाती है? 941.4 किलो जूल पर मोल, ऐसे के आसपास ही होती है ना, 941.4 किलो जूल पर मोल। इतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहती है, इस बॉन्ड को तोड़ने में 941.4 किलो जूल्स की एनर्जी देनी है पर मोल, ठीक है। तो विच इज़ वाइज नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे इन जनरल रिएक्ट नहीं करता विद अदर कंपाउंड, एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एन इनर्ट गैस, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू डिमार्केट और एबल टू डिफरेंशिएट एंड ट्राई I told you, if you're able to understand the differences between a noble gas and an inert gas. I hope that is clear to everybody, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर हम बात करें, so all of the, okay, now one interesting question that I have, and of course this is not an NCERT, but it just randomly popped in my head. Okay, who discovered noble gases? And I'm sure most of you must have the answers, because this is something that we were taught in our junior grades. I mean, if I talk about myself, I definitely remember there was this particular guy who discovered majority of the noble gases. It was 1, 2, 3 and your time's up. It was Sir William Ramsay. It was Sir, let me write down his name for all of you. It was Sir William Ramsay, ठीक है। तो he was the guy who's credited for discovering the noble gases, तो पहली noble gas ना जो इन्होंने डिस्कवर की थी वो आर्गन थी, if I'm not mistaken at 1900, and I do not remember the exact year, but yeah, as far back as I can remember, William Ramsay first discovered argon. तो उन्होंने पहले argon discover की थी, right, and then followed by then he discovered helium, neon, krypton, xenon, फिर eventually धीरे धीरे करके उन्होंने सारी noble gases discover की, ठीक है। रेडॉन की बच्चा अगर मैं बात करूँ, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है,
इट्स कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग डीके, राइट। सो लेकिन नेचुरली अकरेंगे इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 3.82 डेज़ की होती है। सो एज वी वर सेइंग, रेडॉन जो होता है बच्चा वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडॉन जो होता है इट्स रेडियो एक्टिव इन ओरिजिन। रेडॉन की जो हाफ लाइफ होती है इट्स 3.82 डेज़, ठीक है। हाफ लाइफ भी काफ़ी कम समय की है, 3.82 डेज़ की। अब यहीं पे मैं बात करूँ ऑर्गेनोसॉन की। ऑर्गेनोसॉन एक्चुअली में एक सिंथेटिक एलिमेंट है, इट्स मैन मेड, राइट। इट्स मेड इन द लैबोरेटरी, राइट। इंसानों ने बनाया है, नॉट नेचुरली अकरिंग। और इसकी हाफ लाइफ तो बहुत बहुत कम होती है, इट इज़ 0.7 मिली सेकेंड्स जितनी लाइफ मतलब हाफ लाइफ है। सो यू कैन इमेजिन बहुत कम हाफ लाइफ है इसकी। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस द अकरेंस की एक्चुअली में पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द अकरेंस, सबसे पहले ऑल नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप बच्चे इसको स्किप कर देते, बच्चे लाइक हाँ कि ये, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो एनसीईआरटी बोल रही है ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। सभी नोबल गैसेज रेडॉन और ऑर्गेनोसॉन को छोड़ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। क्यों? बिकॉज देखो बाकी जितनी भी हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, सारी नेचुरल, एंड जेनॉन, सारी की सारी नेचुरली अकरेंगे, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। रेडॉन भी नेचुरली अकरेंगे, बट रेडॉन जो है ना रेडियो एक्टिव है। तो रेडॉन जो है इट्स एक्चुअली प्रोड्यूस बाय द नेचुरल डीके ऑफ रेडियम। रेडियम जो होता है ना मेटल, आपने सुना होगा रेडियम, ठीक है, ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, राइट। तो रेडियम में ना रेडियम का जो नेचुरल डीके होता है, रेडियम का नेचुरल डीके होता है, उससे बनती है रेडॉन नेचुरल गैस। रेडियम इज़ अ मेटल, कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। सो रेडॉन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल डीके ऑफ रेडियम इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये कहाँ पाई जाएगी? अर्थ क्रस्ट में, सॉइल में, रॉक्स में, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। रही बात ऑर्गेनोसॉन की, ऑर्गेनोसॉन तो है ही मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट है, तो एटमॉस्फेयर में थोड़ी पाया जाएगा। वो तो हम बनाया है हमने, तो वो तो हमें लैब में ही अगर हम बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद बात करूँ बच्चा इसकी अबंडेंस की, कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है। देयर अबंडेंस इन ड्राई एयर इज़ अराउंड 1%। इनकी जो अबंडेंस है ड्राई एयर में वो कितनी है? लगभग 1% है, 1% बाय वॉल्यूम। इनकी जो अबंडेंस है ड्राई एयर में वो कितनी है? लगभग 1% के आसपास, ठीक है। तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 78% तो हमारे पास नाइट्रोजन ही है मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद 21% है ऑक्सीजन, ठीक है, 21%, और समवेयर अराउंड 1% में ऑल दी अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ड्राई एयर में इनकी अबंडेंस लगभग 1% है, 1% बाय वॉल्यूम, जिसमें से भी आर्गन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। आर्गन इज द मेन थिंग, राइट। उसके बाद मैं बात करूँ हीलियम और नियॉन की। हीलियम एंड नियॉन दे आर समटाइम्स फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। हीलियम और नियॉन किस में पाए जाते हैं? जो कुछ मिनरल जैसे कि कुछ मिनरल जिनका रेडियो एक्टिव ओरिजिन है, ठीक है, जिनका रेडियो एक्टिव डीके होता है जिनमें से, ठीक है। जैसे पिच ब्लेंड हो गया, पिच ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है UO2, ठीक है। मोनोजाइट हो गया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला, इट्स एक्चुअली मोनोजाइट में एक्चुअली फिक्स कॉम्पोजिशन है। आपको कई सारे मेटल्स देखने को मिलते हैं, सीरियम, लैंथेनम, न्यूडीनियम, थोरियम, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली में इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट, ठीक है। तो मोनोजाइट का बेसिकली जो कोर है वो तो फॉस्फेट है। उसके अलावा यू कैन फाइंड ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक सीरियम, लैंथेनम, नियोडीनियम, थोरियम। थोरियम यूजुअली रिलेटिवली हायर परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस, राइट। फिर क्लेवाइट हो गया, क्लेवाइट अगेन UO2, ठीक है। अब मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। मेन सोर्स क्या है हीलियम की? नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ नेचुरल गैस इज बेसिकली फॉसिल फ्यूल विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, ठीक है। तो उनके एक्सक्रीट ऐसे से बायोगैस बेसिकली होगी। तो मेजर कॉम्पोजिशन इसकी होती है, मेजर कॉम्पोजिशन नेचुरल गैस में मेनली प्रेजेंट होता है हमारे पास मीथेन, और उसके अलावा बाकी सारी गैसेज जैसे नाइट्रोजन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ऑल ऑफ दीज गैसेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। फिर बात करें जेनॉन और रेडॉन की। जेनॉन एंड रेडॉन दे आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। वंस अगेन जेनॉन और रेडॉन जो होते हैं ना बच्चे, जेनॉन एंड रेडॉन दे आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के। फिर बात करते हैं रेडॉन की। रेडॉन जैसे कि मैंने बताया कैसे ऑब्टेन होता है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल डीके ऑफ रेडियम, रेडियम के नेचुरल डीके से। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड एज द रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, ठीक है। रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, कैसे अगर मैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे रेडियम की अगर मैं बात करूँ, रेडियम का सिंबल होता है RA, रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 88, एटॉमिक नंबर होता है 88, और मास नंबर होता है 226, ठीक है। एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 226। इस रेडियम का जब अल्फा डीके होता है बच्चा, रेडियम का क्या होता है? अल्फा डीके, यानी अल्फा पार्टिकल जब ये एमिट करती है, तो एक अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, राइट। सो हीलियम का न्यूक्लियाई, सो जिसका मास नंबर होगा 2, और वंस अगेन तो बेसिकली अल्फा डीके मतलब एक हीलियम, मतलब हीलियम, वंस अगेन
अल्फा डीके मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स आर बीइंग एमिटेड, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल की अगर बात करें, अल्फा पार्टिकल होता है क्या, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियर, राइट। सो इस डबली आयनाइज्ड होता है। पहली बात तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। यानी अब देखो, बिकॉज अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, राइट, इफ़ यू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर 2 से कम हो जाएगा, बिकॉज ये 2 का मास नंबर लेके निकल, सॉरी once again, ठीक है बच्चा। तो अगर मैं बात करूँ रेडॉन की, तो रेडॉन कैसे ऑब्टेन होता है, लेट मी टेल यू दैट। रेडॉन एक्चुअली ऑब्टेन होता है विद रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम, ठीक है। तो अब देखो रेडियम की बात करें, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88 और इसका मास नंबर होता है 226। एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 226। अब रेडियम का जब अल्फा डीके होता है ना बच्चा, रेडियम का जब अल्फा डीके होता है तो उससे क्या मिलता है, रेडॉन मिलता है। अल्फा डीके मतलब एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एंड अल्फा पार्टिकल्स बच्चा क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियर, राइट। तो हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम, तो डबली आयनाइज्ड हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4, ठीक है। सब मान लो इस रेडियम से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसका मास नंबर 2 से कम हो चुका होगा। वन सेकेंड। अब बच्चा मान लो रेडियम से अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो गया होगा, बिकॉज 2 के एटॉमिक नंबर के साथ ही अल्फा पार्टिकल निकल गया और उसका मास नंबर है वो 4 के फैक्टर से कम हो गया होगा। यानी अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट बनता है विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट रेडॉन ओनली, रेडॉन जो बनता है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाता है 80, बिकॉज देखो ये अल्फा पार्टिकल निकल गया ना 2 के एटॉमिक नंबर के साथ, तो इसका जो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर है वो है 86 और मास नंबर 4 के फैक्टर से कम हो जाता है। 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 222। So this is radon with atomic number 86 and mass number 222, and which is actually formed by the alpha decay of radium. I hope this is very clear to all of you. And yeah, trust me, this equation is very important. So I would want all of you to make a note of it. ठीक है। उसके बाद बच्चा हम बात करें ऑर्गेनोसॉन की। ऑर्गेनोसॉन हैज़ बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड। ऑर्गेनोसॉन आपके लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हुआ है, हाउ, बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम्स एंड कैल्शियम आयन। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, एक्चुअली में जो कैल्शियम आयंस होते हैं, पहले तो कैल्शियम आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है तो वेरी हाई स्पीड, आई थिंक समवेयर अराउंड 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है। फिर कैल्शियम आयंस को ना बम्बार्ड किया जाता है ऑन अ कैलिफोर्नियम टारगेट। तो कैलिफोर्नियम का टारगेट होता है, इस पर एक्चुअली ये कैलिफोर्नियम की एक शीट या एक टारगेट मान लो जिसमें ना कैल्शियम आयंस को स्ट्राइक किया जा रहा है, बम्बार्ड कराया जा रहा है। तो फिर क्या होगा इवेंचुअली, फिर ये जो कैल्शियम आयंस है ना, मतलब कैल्शियम आयंस का जो कैल्शियम का जो न्यूक्लियस है, कैलिफोर्नियम का जो न्यूक्लियस है, दे विल इवेंचुअली फ्यूज टुगेदर एंड दे विल फॉर्म एन अनस्टेबल ऑर्गेनोसॉन बनाएंगे और फिर एक्चुअली रिलीज़ कर देंगे 3 न्यूट्रॉन्स को। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा, हम कैलिफोर्नियम लेते हैं। कैलिफोर्नियम का टारगेट होगा, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 98 और मास नंबर होता है 249। तो मास नंबर इज़ 249। इसमें हम एक्चुअली क्या बम्बार्ड कराएंगे, कैल्शियम आयंस जिनका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 48, ठीक है। जब मैं कैलिफोर्नियम टारगेट पे हाई स्पीड कैल्शियम आयंस को बम्बार्ड कराऊंगी, तो व्हाट डू आई गेट, विद दीज 2 न्यूक्लियर एक्चुअली फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनोसॉन, तो अनस्टेबल ऑर्गेनोसॉन, ठीक है। तो ये फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, अनस्टेबल ऑर्गेनोसॉन। तो 98 + 20 विल गिव मी 118 एटॉमिक नंबर का ऑर्गेनोसॉन। अब क्या होता है ना, अभी थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, राइट, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस में से रिलीज़ हो जाते हैं, राइट। सो 3 न्यूट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज। न्यूट्रॉन का एक्चुअली में एटॉमिक नंबर तो 0 है, मास नंबर तो 1 होता है, राइट। तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास 1 है, ठीक है, तो 3 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 3। यानी यहाँ पे जो ओवरऑल मास है, ठीक है, वो 3 के फैक्टर से कम हो जाएगा, राइट। सो 249 + 48 विल गिव मी 297, और 297 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ, बिकॉज 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए, सो आई एम लेफ्ट विथ 294, राइट। सो ऑर्गेनोसॉन का जो एक्चुअली मास होता है दैट इज़ 294। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली ऑब्टेन इट। इतना सबको समझ आया, आई एम श्योर सबको समझ आया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड, यही ठीक है। ब्लैंक स्लाइड की मदद से लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एज यू मूव डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बच्चा। देखो अब क्या होता है ना, जैसे व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो लेट मी जस्ट चूज अ डिफरेंट कलर, वन सेकेंड। लेट्स गो विथ वाइट ओनली, शैल वी? ओके, लेट्स गो विथ वाइट।
ठीक है। बच्चे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, व्हाट हैपेंस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक साइज, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक साइज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हम सबको पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज जो है इट बेसिकली इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे मूव करते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। एंड हाउ do you define the atomic size? The distance from the center of the nucleus of an atom to its outermost electron, that is referred to as the atomic size or the atomic radius of an atom, right? तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड विच लीड्स टू an increase in the atomic size, ठीक है। तो atomic size क्या होता है? डाउन द ग्रुप atomic size increases. So kindly make a note that as you move down the group, the atomic size keeps on increasing. Okay, this is clear to everybody? Okay, now let's talk about the next trend, which is what happens to the ionization enthalpy. Ionization enthalpy को क्या होता है? अब देखो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, राइट, अगेन सेम लॉजिक, ठीक है, लेट्स अप्लाई द सेम लॉजिक, ठीक है। डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है। सो ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस द force of attraction between the nucleus and the valence electrons decreases, right, because इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है तो न्यूक्लियस उसको जितना टाइटली बाउंड करना चाहिए तो उतना टाइटली बाउंड नहीं कर पा रहा है। इट्स वेरी सिमिलर टू फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे कि जब तक हम व्हेन वी आर इन स्कूल, राइट, जब तक हम स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो हम अपने टीचर्स की एकदम निगरानी में होते हैं, राइट। वी आर टाइटली बाउंड टू द सिस्टम एंड वी आर बाउंड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल एंड वी हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। बट वंस वी स्टेप आउट ऑफ द स्कूल, राइट, एक बार हम स्कूल से जैसे दूर निकल गए, ठीक है, उसके बाद तो मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल वालों का उतना असर ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इट्स आउट ऑफ देयर रेंज। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है। तो क्या होगा, हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव करा देंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन outermost, once again, and that's exactly what ionization enthalpy is. Ionization enthalpy is nothing but the energy which is provided or the energy required to remove an electron from an isolated gaseous neutral atom, right? तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाएंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीज होता जाएगा, तो मुझे कम एनर्जी देके ही मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँगी, राइट। तो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो जैसे डाउन द ग्रुप जैसे साइज और इंक्रीज होता जाएगा, मुझे और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप बच्चा क्या होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट डिक्रीजेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा, अलोंग द पीरियड क्या होता है, एज यू मूव अलोंग द पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो अलोंग द पीरियड बच्चा क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है व्हेन यू मूविंग अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड ना आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करते हैं। इन फैक्ट द फन फैक्ट इज दैट ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा होती है। दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज दे हैव अ स्टेबल और कम्प्लीटली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल, राइट। तो जो इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होता है या वैलेंस शेल जो होता है इनका, वो फुली फिल्ड होता है, ठीक है। वैलेंस शेल इनका फुली फिल्ड है, ठीक है, स्टेबल है अच्छे खासे ये लोग, ठीक है, कोई इनको दिक्कत नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने हैं, जो वैलेंस शेल है वो फुली फिल्ड है, ठीक है। तो अगर आपको इनकी स्टेबिलिटी ख़राब करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अगर मान लो किसी का सुखी संपन्न घर परिवार है, ठीक है, और सब उनमें बहुत बनती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, तो अगर वहाँ पे अगर आपको बेसिकली लड़ाई करानी है तो बहुत तिकड़म लगानी पड़ेगी, बहुत तिकड़म। तो वैसे ही बिकॉज यहाँ पे एकदम स्टेबल सिस्टम है, राइट। तो अगर स्टेबिलिटी ख़राब करोगे तो आपको बहुत एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड विच इज़ वाई अलोंग द पीरियड ग्रुप 18 एलिमेंट्स दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ओइंग टू द फुली फिल्ड वैलेंस शेल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर अब आया नेक्स्ट ट्रेंड। ओके, लेट मी डिलीट जस्ट दिस। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इतना तो आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा, एवरीबडी इज़ गुड विद दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू द नेगेटिव ईजीई। नेगेटिव ईजीई को क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ नेगेटिव ईजीई को, तो नेगेटिव ईजीई देखो डाउन द ग्रुप यूजुअली क्या होती है, अदर केसेस में हम देखते हैं नेगेटिव ईजीई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। पहली बात तो यहाँ पे नेगेटिव ईजीई होती ही नहीं है, ठीक है। दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईजीई। ईजीई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली यूजुअली हम ऐसे कहते हैं कि एक एटम जो होता है, यूजुअली एटम्स जो होते हैं
जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसे कुछ होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हमें कोई प्राइज़ मिला, ठीक है, एंड कोई प्राइज़ मिला, कोई मेडल मिला, कोई अवार्ड मिला, एंड वी सडनली बिकम सो हैप्पी। अब हम खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी ज़ाहिर करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कोई अवार्ड मिला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ओवर द मून, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कॉल माई फ्रेंड एंड इनवाइट देम फॉर पार्टी, क्या तो भाई तुझे पार्टी देती हूँ। तो अपनी खुशी जाहिर करने के तरीके ढूंढेंगे। ऐसे ही एटम्स जो होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, व्हेन दे गेन एन इलेक्ट्रॉन दे बिकम हैप्पी। अब जब वो खुश हो जाते हैं तो वो खुश हो जाके खुश हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी से। तो वो बस वो खुश हैं, वो स्टेबल हो गए हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, सुखी हो गए हैं, संपन्न हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपनी खुशी जाहिर कैसे करेंगे, बाई रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, दैट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द एटम्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश होते हैं। बट दैट्स नॉट द केस विद नोबल गैसेज। नोबल गैसेज की अगर बच्चा हम बात करें तो नोबल गैसेज का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है फुली फिल्ड ही है ना, मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड ही है एज सच। लाइक व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट, मुझे देखो अब यहीं पे बच्चा अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, राइट, अगर हम बात करें नोबल गैसेस की तो दैट्स नॉट द केस विद नोबल गैसेस, राइट। नोबल गैसेस के साथ थोड़ी ऐसा है। नोबल गैसेस में दे हैव फुली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का जो वैलेंस शेल है वो फुली फिल्ड है, राइट। तो अब उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है, वो अपना खुश हैं जैसे हैं। अब मानो इनके फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने के बाद अगर आप इनमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती अगर आप एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हो तो आपको वो फोर्सफुली गेन कराना पड़ेगा। नोबल गैस को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, नोबल गैस को बिल्कुल खुश है। तो टू फोर्सफुली ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ नोबल गैस एटम आपको एनर्जी इनफैक्ट देनी पड़ेगी रादर देन, ठीक है, रिलीजिंग, ठीक है। तो उल्टा आपको एनर्जी देनी और पड़ती है। सो दिस रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी, राइट। एंड हेंस यहाँ पे जो ईजी हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी एंडोथर्मिक, विच मीन्स एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब और करनी पड़ती है। तो इन्हें एनर्जी देनी पड़ती है अगर इन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। वाई विल दे वांट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इनका आउटरमोस्ट शेल एकदम फुली फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश नहीं होंगे, इन्हें क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट उसके बावजूद भी अगर आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन इन्हें गेन करा रहे हो तो आपको एडिशनल एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा, विच इज़ वाई इन द केस ऑफ नोबल गैसेज जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव हो जाती है। दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सब तो समझ में आया। Yeah, I know I've been speaking for so long, but okay, as long as it helps you, understand everything in detail, I do not really mind it. Okay, now let's quickly go through what NCERT has to say with respect to this. So, okay, let's read NCERT. NCERT बोलती है atomic property. Atomic radii की अगर हम बात करें, so increases down the group with increase in atomic number. तो down the group जैसे जैसे हीलियम से नियॉन से आर्गन से क्रिप्टन से जेनॉन से रेडॉन से ऑर्गेनोसॉन, जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं डाउन द ग्रुप, राइट, जो हमारा अटोमिक रेडियाई है दैट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन अटोमिक नंबर, ठीक है। अटोमिक रेडियाई भी इंक्रीज करता रहता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दीज गैसेज आर वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज। डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी अच्छी खासी होती है, तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा होता है, एंड हेंस यू हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बट इन जनरल अगर हम देखें अक्रॉस द पीरियड, सो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो अच्छा खासा स्टेबल है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, NH2 फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अगर आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है, यानी इनमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, सो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड दैट बिकम्स वेरी वेरी हाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जैसे कि बोला along the period group 18 elements they have the highest ionization enthalpy। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो जैसे मैंने बोला दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इनकी कोई टेंडेंसी नहीं, इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और क्यों ही होगी भाई, बिकॉज इनका जो वैलेंस शेल है वो फुली फिल्ड है। वाई विल दे वांट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, बिकॉज दे डू नॉट रियली वांट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी कोई इच्छा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और हम फिर भी इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ऐड कराए जा रहे हैं, तो इसमें हमें फोर्सफुली ऐड कराना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी और पड़ेगी ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए इसके अंदर, राइट। तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देयरफॉर दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ EGE, ठीक है। इनकी उल्टा पॉजिटिव वैल्यू होती है EGE की, यानी एनर्जी उल्टा ही अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी में सप्लाई की जाती है, एनर्जी रिलीज तो करते ही नहीं, बिकॉज खुश होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो अगर हम बात करें EGE की, ठीक है, सबसे ज़्यादा EGE डाउन द ग्रुप जैसे हम बोलते हैं, EGE जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कम खुशी होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा EGE किसकी होती है, नियॉन की, ठीक है। फिर आर्गन और क्रिप्टन की लगभग बराबर होती है, ठीक है। फिर उससे कम जेनॉन की, उससे कम रेडॉन की,
और देखो सबसे ज़्यादा होनी हीलियम की चाहिए थी, ठीक है, बट हीलियम की इनफैक्ट सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नियॉन, देन आर्गन, फिर क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन तो खैर हम कंसिडर नहीं करते, सिंथेटिक है, ठीक है, बट सबसे कम यहाँ पे किसकी होती है, हीलियम की होती है। एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, and if you want to confirm this data with the help of values, here are the NCERT values for you. So here you go, 1 second, here it is. तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, देखो कितने किलो जूल्स पर मोल, यहाँ पे 48 किलो जूल्स पर मोल अब्जॉर्ब हो रही है। देखो सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव है, विच मीन एनर्जी इज बीइंग अब्जॉर्ब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखोगे अगर इफ यू सी केयरफुली, सबसे ज़्यादा किसके केस में अब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, नियॉन के केस में। तो नियॉन सबसे ज़्यादा हो गया। नियॉन के बाद 96 में क्या आ गया हमारे पास, आर्गन और क्रिप्टन। तो आर्गन और क्रिप्टन में लगभग बराबर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। फिर आर्गन और क्रिप्टन के बाद आ गया हमारा जेनॉन, और जेनॉन के बाद आ गया हमारा रेडॉन, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट में हीलियम, ठीक है। हीलियम में सबसे कम एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। आई होप this particular order is very very important, which is why I've also noted it down here. So I would want all of you, I'm kind of putting it in a box, I would want all of you to kindly make a note of it and remember it. Okay, now let's discuss further. अब हम बात करते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारे के सारे मोनोटॉमिक होते हैं। मतलब जैसे कि अनलाइक अदर गैसेस, जैसे कि हमने ऑक्सीजन देखा था, एक ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। ये ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 ऑक्सीजन एटम यानी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट द केस विद नोबल गैसेज। नोबल गैसेज आर मोनोटॉमिक, एक सिंगल एटम ही एग्जिस्ट कर रहा है। हीलियम ले लो, चाहे नियॉन ले लो, ठीक है, चाहे आर्गन ले लो, चाहे क्रिप्टन ले लो, चाहे जेनॉन ले लो, चाहे रेडॉन ले लो, चाहे ऑर्गेनिसॉन ले लो, दे आर ऑल मोनोटॉमिक, एक सिंगल एटम ही है, ठीक है। सारी की सारी कलरलेस होती है, सारी की सारी ओडरलेस होती है। कलरलेस मतलब दे डू नॉट रियली हैव अ कलर, और ओडरलेस की बात करूँ तो मतलब इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। टेस्टलेस भी होती हैं, सच में उनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 2 से, दे आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा नहीं घुलती है। मतलब एक होता है सब्सटेंसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, एंड देन देयर आर सब्सटेंसेस विच आर नॉट एट ऑल सोल्यूबल इन वाटर, जो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, विच आर इनसोल्यूबल, राइट। एंड देन देयर कम्स द थर्ड कैटेगरी, जो थोड़ी सोल्यूबल है भी बट नहीं है, विच इज़ रेफर्ड एज स्पैरिंगली सोल्यूबल। हिंदी में से कहते हैं अल्प घुलनशील, मतलब अल्प विलय, अल्प घुलनशील, ऑल ऑफ दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन रिमेंबर। और अल्प मतलब कम घुलने वाला है, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं घुलता लेकिन थोड़ा बहुत घुल जाता है, वैसा वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दे हैव वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम। अब देखो यूजुअली हम सबको पता है एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हीलियम का एटम है, दूसरा हीलियम का एटम है, यहाँ पे हीलियम का एटम है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे हीलियम के एटम है। अब एक्चुअली में आप देखोगे ना, तो जो हीलियम के एटम्स है ना, इनके बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, दे नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। जैसे कि मतलब सोडियम वगैरह या फिर और मेटल्स ले लेते हैं, उनके केस में द पार्टिकल्स दे डू हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में कोई ऐसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बिकॉज बात यहाँ पे क्या है, बिकॉज इनका कंप्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहते, जैसे इन्हें किसी को किसी से मतलब है नहीं, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब 1 सेकेंड, तो बच्चा कभी कभी पता है क्या होता है ना, 1 सेकेंड, तो लेकिन पता है बच्चा कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल इन सब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो कभी कभी लेट्स से मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं बताते हैं, जैसे कि 1 मिनट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। सो ड्यू टू जस्ट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्प्रेरी इंड्यूस डाइपोल हो जाता है, मतलब टेम्प्रेरी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। मैं बेसिकली मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो गए रहे, तो इधर थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, थोड़ा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। फिर 1 सेकेंड दिया, ओके। सो अब मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं ये एक हीलियम का एटम है, ठीक है, ये एक हीलियम का एटम है, ये एक हीलियम का एटम है, ठीक है ना। मैं ड्रॉ जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, टू ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू यू बेटर। ये एक हीलियम का एटम है, 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 मैम ये एक हीलियम का एटम है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब हीलियम के एटम में ना आज सच आप देखोगे तो इनके बीच में आज सच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है आज सच, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वैसे कभी कभी हम सबको पता है इन सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, इनकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, तो कभी कभी ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेम्पररीली डाइपोल्स गेट इंड्यूस्ड इन एन एटम, ठीक है।
टेम्परली कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ऐसे घूम रहे हैं, मतलब रैंडमली, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो क्या वो इन दोनों में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव से चार्ज हो गया, ठीक है। अब इधर की तरफ पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस एग्जैक्टली देखो और कैसे होता है, इट्स नॉट रियली रेलेवेंट एज पे योर लेवल्स, ठीक है। और ये सब हम डिटेल में पढ़ते भी हैं केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये सब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो इनमें टेम्परली इलेक्ट्रॉन की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कभी कभी एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव। अब इनमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब ये एक एटम में से डाइपोल इंड्यूस हुआ, इट विल देन इंड्यूस डाइपोल इन अनदर नेबरिंग एटम, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल विल इंड्यूस अनदर डाइपोल। एक में डाइपोल इंड्यूस हुआ, ठीक है, एंड दैट विल इंड्यूस डाइपोल इन अनदर, राइट, अनदर एटम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, या फिर वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, या फिर लंडन फोर्सेज, या वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। देयर आर मेनी नेम्स, ओके। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद बच्चा अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विच इज 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट इज द लोएस्ट, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हीलियम का। कितना होता है, 4.2 केल्विन। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस में करें, तो मेरे को तो एग्जैक्ट डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू भी पता है, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो इट इज़ इट्स -268.93 डिग्री सेल्सियस, -268.93 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन इमेजिन, मतलब डिग्री सेल्सियस में -268 में जा रहा है, मतलब समझ रहे हो कितना कम बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि, और इधर कंक्लूजन आप निकालो तो मतलब इतने कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बॉईल होना मतलब लिक्विड का गैस में चेंज होना, राइट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, यानी फॉर हीलियम टू रिमेन इन अ लिक्विड दैट इज़ ओनली पॉसिबल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, राइट। बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएगा। इसके बाद तो बॉयल ही हो जाएगा, बिकॉज ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा तो फिर सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा हीलियम, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद इट हैज़ अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू कॉमनली यूज लैब मटेरियल सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हीलियम में ना एक बहुत वियर, एक अनयूजुअल सी प्रॉपर्टी होती है ऑफ डिफ्यूजन, ये ना घुल जाता है आसानी से। डिफ्यूजन मीन्स जस्ट डिफ्यूजेज इनटू अदर सब्सटेंसेज, एंड व्हाई इज इट सो, इट्स बिकॉज ऑफ द मिनिमल एटॉमिक साइज एंड द मिनिमल मास, ठीक है। हम सबको पता है हीलियम का साइज़ बहुत छोटा होता है, सेकंड एलिमेंट है यार पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और साइज़ इतना छोटा है, मास इतना कम है, तो ये क्या करता है ना, बिकॉज ऑफ द मिनिमल साइज एंड मिनिमल मास, ठीक है, इट कैन easily pass through the crevices, or it can easily pass through the microscope, ठीक है। अब ओइंग टू दिस मिनिमल एटॉमिक मास एंड साइज, ये हीलियम क्या करता है, बहुत आसानी से पास कर जाता है थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ मेनी मटेरियल्स, ठीक है। तो बिकॉज ये इतना छोटा सा है ना, कि बाकी मटेरियल्स की जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं उनसे पास कर जाता है और उनमें जाके घुल जाता है, ठीक है। इट कैन ईजिली पेनिट्रेट, इट कैन ईजिली पास थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड इट कैन ईजिली पास थ्रू द इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, ऑफ मेनी मटीरियल्स, और उनमें जाके उनकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उनको ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो इट हैज़ दिस वियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू मेनी लैब मटेरियल, जैसे कि रबर में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है, ग्लास में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है, प्लास्टिक में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है, ओइंग टू द स्मॉल एटॉमिक मास एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा लास्ट हमारे पास बचती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो ग्रुप 18 है, ये रिलेटिवली काफ़ी छोटा है पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारे रिएक्शन वगैरह तो हटा ही दिए हैं एनसीईआरटी से। तो अगर मैं बात करूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह, सो नोबल गैसेज आर द लीस्ट रिएक्टिव। हम सबको पता है नोबल गैसेज लीस्ट रिएक्टिव होती है। व्हाट इज ओइंग टू द लीस्ट रिएक्टिविटी, क्यों है इतने कम रिएक्टिव, द केमिकल इनर्टनेस इज ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड वैलेंट शेल, बिकॉज जो इनका वैलेंट शेल या आउटरमोस्ट शेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटरमोस्ट शेल जो है फुली फिल्ड है, उसके अलावा बच्चा ओके। अब उसके अलावा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इतनी आप हाई एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, एंड हेंस द हाई आयनाइजेशन एनर्जी
ऑल राइट, तो बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एनर्जी फिर इनका जो पॉजिटिव ई होता है राइट, जो इनको इनफैक्ट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी राइट। तो ओइंग टू ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दे बिकम केमिकली इनर्ट, यानी रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर paragraph. So I would want all of you to pay attention because this does require a little bit of understanding. But easy, I would not say it's complicated, not at all complicated, but all you have to do is pay heed, okay, while I'm explaining this to you. 1962 में बच्चा अगर मैं बात करूँ, 1962 में there was a scientist called नील बार्टलेट, ठीक है। नील बार्टलेट ने एक रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर किया विच इज़ O2 प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी। फॉर एग्जाम्पल लेते हम स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे ऑक्सीजन से, मॉलिकुलर ऑक्सीजन है O2 है, सिर्फ ऑक्सीजन ही मॉलिकुलर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मुझे इस मॉलिकुलर ऑक्सीजन से मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आई हैव टू सप्लाई सम एनर्जी राइट। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, उसका हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर इसमें मुझे इस मॉलिकुलर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मुझे कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस में, ठीक है। O2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो गया, और इस दौरान मुझे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करनी पड़ी इट वाज 1175 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 1175 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ी, ठीक है। अब मैंने जब O2 प्लस बना लिया, अब मैंने क्या किया ना, इस O2 प्लस को PTF6 माइनस के साथ रिएक्ट कराया, मेरे पास जो कंपाउंड बन गया O2 प्लस PTF6 माइनस। मेरे पास एक रेड कलर का बड़ा सुंदर सा, मेरे पास एक रेड कलर का बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड बन गया। फिर नील बार्टलेट कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे परफॉर्म कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा जेनॉन, उनकी निगाह पड़ी जेनॉन पे। उन्होंने देखा जेनॉन, जब जेनॉन को स्टडी कर रहे थे उन्होंने देखा जेनॉन की भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज़ 1170 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन इज ऑल्सो 1170 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर ऑक्सीजन को मैं इतनी एनर्जी सप्लाई करके ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकता हूँ, तो जेनॉन के साथ मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। सो दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया दैट स्ट्रक हिम एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कंपेल्ड हिम टू डू टेक हिज एक्सपेरिमेंट फर्दर। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर जेनॉन की भी लगभग सिमिलर सी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो जेनॉन को भी उन्होंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की और जेनॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एंड जेनॉन गॉट कन्वर्टेड टू जेनॉन प्लस। तो उन्होंने बोला जैसे मैंने O2 प्लस को PTF6 माइनस के साथ कंबाइन करके रेड कलर के कंपाउंड बनाया, मैं जेनॉन के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ। और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जेनॉन प्लस को जब उन्होंने कंबाइन किया किसके साथ, PTF6 माइनस के साथ, ही वॉज एक्चुअली एबल टू प्रिपेयर रेड कलर कंपाउंड्स जिसका फॉर्मूला था Xe प्लस, मतलब जेनॉन प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। उन्होंने रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर किया एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। और वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को आइडिया पता चल गया कि वी डू अग्री कि जो नोबल गैसेज हैं दे केमिकली इनर्ट, मतलब रिएक्ट नहीं करती हैं ज़्यादा, बट अंडर एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन, मतलब हम ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज इमेजिन 1170 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज नॉट एनी लेस राइट, इट्स लॉट ऑफ एनर्जी राइट, बट स्पेशल कंडीशंस में हम इनके कुछ कंपाउंड प्रिपेयर करा सकते हैं। वहीं से लोगों को आइडिया लगने लगा कि ठीक है वी डू अग्री कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हैं, विच मीन दे कैन फॉर्म सर्टन कंपाउंड। तो वहीं से आइडिया लग गया कि ओके नोबल गैसेज के भी कुछ एक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जैसे, ठीक है। बट अब वो कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड हेंस वी विल रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम स्टडीइंग अबाउट दैट। So yeah, that's it for the video. I think we're absolutely done with the entire P block. I really hope you thoroughly enjoyed it. It has taken a lot of blood, sweat and effort from my end to be able to explain it to you. Yeah, and yeah, so I really hope itna sabko samajh aaya, right? Okay.